رمضان المبارک میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح کسی بھی دن 21 بار پڑھ لیجئے۔ ہر بیماری سے انشاءاللہ آپ کا گھر پاک صاف ہو جائے گا اور رزق اور دولت دروازے توڑ کر آئیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، ایک خاص تسبیح، ایک شرطیہ تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح رمضان میں کسی بھی دن صرف 21 بار پڑھ لیں کہ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک میں کسی بھی دن صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے اور اس گھر میں اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ ناظرین، میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رمضان آئے اور میں یہ وظیفہ کر سکوں۔ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اسے صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی طاقتور تسبیح ہے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح اس ماہ مبارک میں ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بیماری سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو شخص کسی بھی دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھیں، وہ تمام خواہشات ایک دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ماہ رمضان المبارک میں کرنے والی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ یہ تسبیح، یہ عمل کسی بھی دن کر لیتا ہے، وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، اور بڑا ہی بد نصیب، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک میں رب کو راضی نہ کر سکے، کیونکہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے اور ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آیا ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جو شخص کہتا ہے مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جو شخص کہتا ہے میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی خواہشات اور حاجات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑنا، اور یاد رکھنا کہ ماہ رمضان المبارک میں یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھ لینا، کیونکہ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، اتنی مجرب ہے کہ دوستوں، ماہ رمضان المبارک میں یہ تسبیح پڑھنے والے کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر اندرونی بیرونی بیماری سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے ایام میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اسے پڑھ لے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے انتہائی اہم اور قیمتی ہیں، پس اگر آپ ان کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطار کا گھنٹہ، کہ افطاری کی تیاری جلدی کیجیے اور دعا کے لیے خصوصی وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی، لہٰذا خود اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے، خداوند عالم سے خلوت کرے کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا کہ میں قبول کروں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجات طلب کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تو ناظرین، اس وقت خصوصی دعائیں کیا کیجیے، اور تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں، ان کو انتہائی قیمتی بنائیے، ذکر خدا کیجیے اور غیبت سے
دوری कीजिए। नमाज पंजगाना और नवाफिल बजा लाइए कि सिर्फ 30 दिन हैं भाइयों और बहनों, और बहुत जल्दी गुजर जाएंगे। आधा महीना तो गुजर भी चुका है। और भाइयों और बहनों, मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक से हाथ जोड़कर गुजारिश करता कि मांगने की रातें हैं, ख़जाने लूटने के दिन हैं, रब करीम से अपनी हर बात मनवाने के दिन हैं, गैबी मदद, गैबी ख़जानों से मालामाल होने के दिन हैं। अगर अभी भी नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? मैं अपने तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों तमाम से गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान अल मुबारक के दिन ये अमल ज़रूर कीजिए कि अल्लाह की लाडली तस्बीह है, और जो भी पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ लेगा, रब करीम हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देंगे। उसके घर से तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी, और उसके घर में रिस्क इतना बढ़ा दिया जाएगा कि रिस्क दरवाजे तोड़कर उसके घर में दाखिल होगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। तो आज जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, इंशाअल्लाह मनपसंद नौकरी मिलेगी। आज ये तस्बीह पढ़कर रब करीम से कई हफ्तों और कई दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बस आप मांगते चले जाओ, फरिश्ते रब के हुक्म से आपको देते चले जाएंगे। आज मनपसंद शादी के लिए पढ़ लो। कर्ज जैसी दलदल से बचना चाहते हो, कर्ज ने जीना हराम कर रखा है, कर्जे से हमेशा के लिए निजात के लिए पढ़ लो। आज कर्ज जैसी दलदल से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। आज जो कोई परेशान है, बीमार है, लाचार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो रमज़ान अल मुबारक में किसी भी दिन, जिस वक्त ये वीडियो आपके सामने आए, रमज़ान अल मुबारक में ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में ये अमल ज़रूर कर लेना। अपनी लाइलाज बीमारी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लो। भाइयों और बहनों, बदकिस्मत है वो बंदा जो इन अयाम को पाए और रब करीम से अपनी हाजात पूरी ना करवा सके। इन अयाम में मांगने वाले को फौरी तौर पर अता किया जाता है, और इन अयाम में मांगने वाले के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा किया जाता है। इन अयाम में मांगने वाले की नस्लों को रंग दिया जाता है। भाइयों और बहनों, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज के दिन अल्लाह ताला की ये लाडली तस्बीह जो आपको बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरे बताए गए तरीक़े से पढ़ लीजिए। आप खुली आंखों से रब के मौजज़ात देखेंगे। रब की ज़ात पढ़ने वाले पर इतना करम फरमाएगी, इतनी नेमतों की बरसात फरमाएगी, इतनी कामयाबियाँ, उरूज और तरक्की से नवाजेगी कि इंशाअल्लाह आप दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी ने अल्लाह की लाडली तस्बीह का अमल बताया था। नाज़रीन मोहतरम, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेरा मकसद आप तक वो आमाल और तस्बीहात लेकर आना है जिनका वजूद है और जिनको पढ़ने से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं, जो लाखों लोगों के आजमाए हुए हैं और जिनको पढ़कर लाखों लोगों ने अपनी हाजात को पूरा करवाया है। मेरा मकसद बने बनाए वज़ाइफ बताना नहीं है, वो तस्बीहात, वो वज़ाइफ लेकर आना है जो वाकई वजूद रखते हैं, बुज़ुर्गों से साबित शुदा हैं। ज़िंदगी अभी मौका दे रही है, अभी नहीं मांगोगे तो कब मांगोगे? ये मौका साल में एक बार मिलता है। माह रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन 1 मिनट की ये तस्बीह मेरे समझाने में, मेरे बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी किस्म की कोई गलती कोताही हो जाए। आज अगर ये दिन जो साल में एक बार आता है, ये कबूलियत की घड़ियाँ जो साल में एक बार आती हैं, वो लापरवाही से ज़ाया हो गई तो वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुज़ुर्गों जो दुखियारी हैं, परेशान हैं, तंगदस्त हैं, बीमार हैं, आज रब करीम की ज़ात बंदे की न शक्लों को देखती है, न आमाल को देखती है। इन अयाम के सदक़े तमाम की तमाम नस्लों को रंग देती है। जिस घर में ये 1 मिनट की अल्लाह की लाडली तस्बीह पढ़ी जाएगी, उस घर का हर फर्द हर बीमारी से आज़ाद हो जाएगा और उस घर में रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर दाखिल होगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबोपति हो जाएगा। और इस तस्बीह की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि ये तस्बीह अफ्तारी से पहले पहले हर हाजत को पूरा करवा देती है। तो आज के दिन जो बंदा ये तस्बीह पढ़ेगा, इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत पूरी होगी। और जिनकी हाजत फौरी तौर पर पूरी नहीं होगी, इंशाअल्लाह अफ्तारी से पहले पहले आपको ज़रूर खुशखबरी मिल जाएगी। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस लाडली तस्बीह को पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने से रब की ज़ात अफ्तारी से पहले इंसान की हर हाजत को पूरा करने के लिए तैयार है, नस्लों को रंगने के लिए तैयार है, बिगड़े काम संवारने के लिए तैयार है, बीमारियों से निजात देने के लिए तैयार है, घर में रिज़्क़, माल और दौलत अता करने के लिए तैयार
तैयार है। तो अब ये मत कहना कि मांगने का तरीक़ा नहीं आता, क्योंकि आज के दिन ये एक तस्बीह आपके हवाले कर रहा हूँ। पढ़ने का तरीक़ा भी बताऊँगा, रब से मांगने का तरीक़ा भी बताऊँगा कि ख़ज़ानों का मालिक कैसे बनना है, अपनी हाजात को कैसे पूरा करवाना है, अपने घर के हालात को कैसे बेहतर करना है, बेसकूनी और बेबरकती से निजात कैसे पानी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात आपको मुकम्मल तफसील से बताऊँगा। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह आपकी तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए आज वजीफ़ा छोड़ने का कोई बहाना मत करना। रमज़ानुल मुबारक में 30 दिन हैं, पूरे दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाता है आप ये वजीफ़ा, ये तस्बीह ज़रूर करना। दुकान पर हो दुकान पर पढ़ लो, दफ्तर में हो सफ़र में हो, जहाँ कहीं भी हो 1 मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ना। इसके बाद दुनिया जहान का कोई काम है कर लेना, सिर्फ़ 1 मिनट इस वजीफ़े को लाजमी देना। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सा अमल है जो आपने रमज़ानुल मुबारक में किसी भी दिन लाजमी करना है। उससे पहले आइए भाइयों और बहनों एक खसूसी दुआ करते हैं। सब शरीक हैं, आपने आमीन ज़रूर कहना है, क्योंकि पता नहीं कितने हज़ारों लोगों तक ये वीडियो जाएगी। किसकी आमीन रब्बे करीम को इतनी पसंद आ जाए कि हम सब के बिगड़े काम बन जाए, हम सब की नेक जायज़ हाजात पूरी हो जाए। आइए दुआ करते हैं कि ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का सदक़ा। मौला आज जो दुखियारे हैं, जो परेशान हैं, जो तंगदस्त हैं, हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े हम सब की नस्लों को आबाद फरमा। जो कोई बे औलाद है उसे बेहतरीन औलाद से नवाज। आज तेरी बारगाह में मौला हाथ फैला कर बैठे हैं, ये कबूलियत के दिन हैं, मांगने वाले की झोलियाँ तू भर देता है। ए अल्लाह, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, आज जो मांग रहे हैं मुक़द्दर फरमा दे। आज जो कोई दिल में नेक जायज़ हाजात लेकर बैठा है, मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, जो मांगा है मुक़द्दर फरमा दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा दे। ए मेरे मालिक व मौला, तू अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। आज हम सब पर तेरी नज़र करम फरमा दे। तेरी एक नज़र करम के मोहताज हैं हम सब, हमारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मौला, आज जिस किसी का भी दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन आमीन ज़रूर लिखिएगा। और मोहतरम नाजरीन, आइए आज के वजीफ़े की जानिब चलते हैं। आपने करना क्या है, नमाज फ़जर हो, नमाज ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, तहज्जुद हो, नमाज जुम्मा हो, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। यूँ तो आप ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन तजवीज़ करूँगा कि आप किसी नमाज के बाद ये अमल करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले आपने बावज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, दुरूद पाक वैसे तो आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, लेकिन बेहतर यही है कि ये दुरूद जो मैंने अभी पढ़ा है, जिसे दुरूद इब्राहीमी भी कहते हैं और जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सबसे बेहतर ये है कि आप यही वाला दुरूद पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फ़जीलत तमाम दुरूदों से ज़्यादा है। और रिवायात में भी आता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहीमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ें। जब आप दुरूद पाक मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आज आपको रब्बे करीम से जो भी चाहिए ज़िद करके मांगिएगा, और आज 1, 2 या 3 नहीं, सैकड़ों हाजात की फ़हरिस्त बनाकर भी बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत ज़रूर पूरी होगी। बस शर्त यह है कि मकसद की नीयत करके बैठना है, क्योंकि आमाल की कबूलियत का दारो मदार ही नीयतों पर है। और आज रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर मिलेगी। इसलिए भाइयों और बहनों, आपने थोड़ा नहीं मांगना कि बाद में कहो काश मैंने ये भी मांग लिया होता और ये भी मांग लिया होता। आज जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो मकसद की नियत करने के बाद एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। बड़ी कबूलियत की घड़ियाँ हैं, हर लम्हा रहमतें नेमतें बारिश की तरह बरस रही हैं। पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है 1 मिनट की तस्बीह है। ये तस्बीह इंशाअल्लाह आज आपकी तकदीर का फ़ैसला कर देगी। ये तस्बीह करके हालात को बदल देगी और ये तस्बीह बेबरकती बेसकूनी का ख़ात्मा कर देगी। आज हर कोई चाहता है कि गैब से उसे मदद हासिल हो जाए। तो आपने पहले नंबर पर जो तस्बीह पढ़नी है वो रब करीम के 3 नामों की तस्बीह है। और वो 3 नाम क्या है, आप सुनते ही होश में आ जाएंगे कि इस तस्बीह की कितनी अहमियत है। इन नामों को सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन सिर्फ़ 1 मिनट की तस्बीह या गनीयु या मुगनियु या अल्लाहु, ये तस्बीह पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो अल्लाह वाले हैं, जो अहले इल्म है, वो जानते हैं कि इसकी कदर व कीमत क्या है और अल्लाह ताला के ये 3 नाम मिलाकर पढ़ने की ताकत क्या है, इसकी फजीलत व बरकत क्या है। नाजरीन, या गनीयु रब करीम का वो नाम है जो अर्श पर बैठे रब को राज़ी कर लेता है। अगर कोई भिखारी है, फ़कीर, तंगदस्त, दुखियारी, परेशान हाल है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, जो ज़िंदगी में मायूस हो चुका है, जो समझता है कि उसकी दुआएं कभी कबूल नहीं हो सकती, जो समझता है कि गुर्बत मेरा मुकद्दर हो चुकी है, वो मायूस होना छोड़ दे कि मोमिन को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा होना चाहिए। किसी भी लम्हे अपने रब की रहमत से, उसकी ज़ात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत पर हमेशा उम्मीद रखने की हमें बारहा ताकीद की गई है कि उसकी रहमत से नाउमीद और मायूस होने वाले से मुताल्लिक बहुत सख्त वईदें भी वारिद हुई हैं। इसी तरह अल्लाह ताला से अच्छा गुमान और उसकी ज़ात पर कामिल भरोसा रखने से मुताल्लिक हदीस पाक में है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। अगर वो मुझसे खैर का गुमान करे तो उसके लिए खैर है, और अगर वो मुझसे शर का गुमान रखे तो उसके लिए शर है। और हदीस पाक में अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने को गुनाह कबीरा करार दिया गया है। तो नाजरीन, आपने दिल में कामिल यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा करना है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी और अल्लाह ताला आपके हालात ज़रूर बदलेगा। दिल में ये वसावस नहीं रखने कि पता नहीं मेरा ये वजीफ़ा, मेरा ये अमल, मेरी ये दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, बल्कि कामिल यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है कि इंशाअल्लाह आपकी मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो नाजरीन, या गनीयु या मुगनियु या अल्लाहु इंतहाई ताकतवर तस्बीह है। इसे आम तस्बीह की तरह नहीं पढ़ना कि तस्बीह का दाने पे दाना फेंको। ये कबूलियत का वक्त है, कबूलियत की तस्बीह है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक तस्बीह जो सिर्फ़ 1 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी, एक तस्बीह पढ़कर अफ्तारी से पहले कामयाब हो जाएं और हर मकसद में कामयाबी पा लें, अफ्तारी से पहले अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, तो आपने या गनीयु या मुगनियु या अल्लाहु को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है और इस अक़ीदत के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से या गनीयु या मुगनियु या अल्लाहु ये कलिमात निकल रहे हों, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से गिड़गिड़ा कर ज़िद करके मांगते चले जाएं। नाजरीन, यकीन से कहता हूँ कि आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी। हो सके तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। ये 100 दानों की तस्बीह करनी है। ये तस्बीह पढ़ते दौरान जो जो आपके दिल में आता चला जाए, इंशाअल्लाह वो आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए ये एक तस्बीह पढ़ते दौरान जितना हो सकता है रब करीम से मांगते चले जाना। एक दिन में करोड़ों पति बना देने वाला अमल आपके हवाले कर दिया है। देखते हैं कौन खुशकिस्मत है जो आज के दिन ये ख़ास तस्बीह पढ़ेगा। जैसे ही ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक ऐसा अमल है कि जिसे ख़ास दौलत का वजीफ़ा कहा जाता है। और जिस मौजूदा निज़ाम में नाज़रीन कराम हम रह रहे हैं, पैसा इंतहाई ज़रूरी है कि पैसे के बग़ैर ना सुकून है, ना अखराजात पूरे होते हैं, ना ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो आज अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा दे रहा हूँ जो वाकई आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। अगर आपके कारोबार में रुकावट है, आपके कारोबार में बंदिश है, आपके बच्चों के रिश्तों में बंदिशें हैं, चलता हुआ कारोबार बंद हो रहा है, आपके घर के हालात इतने ख़राब हैं कि हर काम होते होते रह जाता है और आपको लगता है कि ये काम बना हुआ है लेकिन आपके हाथों से निकल जाता है,
اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات ہیں تو آپ نے رمضان المبارک میں کسی بھی دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ الکوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل کس قدر طاقتور ہے۔ افطاری سے پہلے پڑھیں، آپ کی انشاءاللہ ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ناظرین الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کو بھی 21 بار پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ نے کر لینے ہیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، آپ کی جو بھی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کے کرنے سے ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی بیماری، تکلیف اور دکھ درد سے نجات عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ رزق عطا فرمائے گا کہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھروں میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کو آپ اپنی سلامتی کا ذریعہ بنائیے، گناہوں سے محفوظ رہیے، اللہ تعالیٰ سے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق کے لیے دعا مانگیے، اور اس ماہ مبارک میں خوب ساری برکات سمیٹیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے آپ نے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔